आई एम डूइंग ब्रेकफास्ट एट 1:30। उनका तो एक्सपीरियंस लेवल हम मैच ही नहीं कर सकते। मैं ऐसे कुछ लाइक मम्मी जो खाना बनाती वो वाले खाने नहीं बनाती। मैं सोफे से भी पतली बेड पे सोती हूँ। मैं झाड़ू वाला आया कि निकलो बाहर, घर से बाहर निकलो। So guys, this is my new laptop and this is Bhumika Rasdev reporting from a laptop's camera. I might look messy because of course train से आने के बाद I have not did any effort for my hair and skin. I'm going to go and take a shower, wash my hairs with some hair mask which mom has made for me. Guys, so I showered and this is my pretty hair after shower. I don't know how. The moment I washed my hair in my home and they're looking dead gorgeous. And they have started behaving. Like what happens to my hair in Mumbai, I also don't know. I'm still figuring out. So I have decided that I'm going to vlog every day of me in home because I want to document all my happiness again. And when I'll go back to hostel, I'll see these cherishing moments of my life and will get more happy that I documented every day, because every day over here is worth it now when I have came back from hostel. So it's worth it for me. So the update is I'm going to change the background. Maybe you are seeing this background for the last time because I'm going to upgrade it. Pattern will be same but I'm going to upgrade the pictures. ये जितना भी मैस है पीछे ये मैंने ही फैलाया है. Of course I just vacuumed all my luggages. So yeah, that's the room. I have unboxed my first laptop and headphone and mouse. And उसकी वीडियो मैंने सुबह के 4 बजे बजाई है सुबह के 4 बजे बनाई है. And the date is 10 and 10. Like my birthday was on 10. So 10 number is my lucky number. And I unboxed my first laptop on 10 on 10. So it was so nice. पहले घर आते ही फर्स्टली आई एट मम्मा का हाथ का बना हुआ केक विच इज़ माई फेवरेट फ्रूट वाला केक था. एंड देन फिर मैंने अनबॉक्सिंग की एंड देन मैं 5 बजे सोई और फिर 12 बजे उठ गई बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू मिस ब्रेकफास्ट. because I'm not going to miss any single plate of food in my home. Because if I can eat mess का खाना, I'm going to eat घर का खाना अच्छे से by ignoring dieting and working out more. Of course, I need to work out if I'm going to eat everything in home. And let me show you the mess I have created on my bed, which is miserable. वो उस condition में नहीं है कि मैं तुमको दिखाऊँ, but फिर भी let me show you because we are unfiltered in YouTube. So this is दी फैलाना जो मैंने मचाया हुआ है. ओके सारे कपड़े अब मेरे को कबर्ड में सेट करने हैं. ये मेरा पिंक ये स्किन केयर किट है. ये भी मैंने जस्ट वैक्यूम किया है. एंड ये है ये लैपटॉप के साथ ही आया था थर्मोकोल. एंड ये सब मैंने अपने बैग से निकाल के इधर रखा हुआ है. सो आई नीड टू जस्ट आई जस्ट नीड टू प्लेस एवरीथिंग ऑन इट्स ओरिजिनल प्लेस. एंड देन मे बी I'm going to edit some shots. Then मैं एक रील एडिट करने वाली हूँ. एंड देन आई एम गोइंग टू पोस्ट इट एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन अ व्लॉग. अभी तक मैंने एडिटिंग की सेटअप नहीं की है लैपटॉप में. आई नीड टू डू दैट. मेरा हाथ दुख गया फ़ोन ऐसे पकड़ते पकड़ते भाई साहब. इवन मैंने अभी तक एक ऐप भी डाउनलोड नहीं किया है. सो दैट्स आई एम गोइंग टू डू. सो वो एक काम बचा है जो मुझे करना है. उसमें मुझे नोशन प्लानिंग भी करनी है. एंड मुझे लाइक Pinterest वगैरह डाउनलोड करना है ना. एडिटिंग ऐप्स वगैरह सब डाउनलोड करना है. उसमें एक दिन में तो नहीं होगा बट आई थिंक जब तक मैं घर में हूँ तब तक मैं कंप्लीट कर लूँगी. एंड व्हेन आई गो बैक टू माई हॉस्टल आई विल बी फुल्ली रेडी विथ माई एडिटिंग सेटअप. बट आई ट्राई टू लाइक टेम्पररीली मैं उसमें एडिट कर पाऊँ इतना मैं अभी कर लूँगी. सो दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू बेसिकली. मे बी टुडे और डे आफ्टर टुमारो आई डोंट नो. बट नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट कीप माई क्लॉथ्स इन साइड. एंड जो भी न्यू कपड़े वो मैं ट्राई करके अपना फैशन शो लाइक रैम्प वॉक करने वाली हूँ. ऑफ कोर्स दैट्स नॉन नेगोशिएबल फॉर मी व्हेन आई बाय न्यू क्लॉथ्स. लाइक आई नीड टू वेयर इट एंड जस्ट चेक आउट माई सेल्फ 100 times in mirror and do a ramp walk. Not like maybe 10 times. Less is more for me in this case. So that's what I'm going to do basically, time pass and then going to edit a reel. And I have planned so much fun content like Diwali makeup. Then I have 3 back-to-back talking videos, sit-down talk videos kind of on very important titles. Okay, switched my hand because it's paining like hell. So अभी मेरा भाई गया क्रिकेट की प्रैक्टिस पे. मम्मा इज़ गिविंग कोचिंग एंड मैं भी टाइम पास करने वाली हूँ. फुल टू टाइम पास. सो टाइम पास करने के बाद मिलती हूँ कुछ शाम को.
आई थॉट कि डिनर तो मैं रोज़ खुद का खुद ही बनाऊंगी, बिकॉज मैं मर रही थी वहाँ पे कुकिंग करने के लिए. आई लव कुकिंग फॉर माई सेल्फ. इफ़ माई फैमिली वॉन्ट्स मी टू कुक फॉर देम, आई डोंट माइंड. एंड बेसिकली मैं ऐसे कुछ लाइक मम्मी जो खाना बनाती वो वाले खाने नहीं बनाती. मैं बनाती हूँ पास्ता, बेबी कॉर्न चिली, एंड कॉफ़ी बनाती थी पहले. एंड स्मूदीज़, आई लव स्मूदीज़, वो भी मैं बहुत बना के लाइक खाने वाली हूँ. एंड so today I'm not going to do any dinner situation because mama is going to make theplas and I'm not going to miss out. And of course मुझे अभी काम भी है, like plots and all, editing and all. Officially first day in my home, like 10 on 10. So yeah. एंड ऑल्सो मैंने एक कांड कर दिया है, लाइक सी मैं दिखा देती हूँ, बोल के एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कैमरे में. आई नीड टू शो यू द सिचुएशन. ये रिंग लाइट मैं लेके आई थी, ठीक है. इसके ऊपर वाला वो निकाला था एंड पैक करने के लिए मैंने इसके ऊपर वाला वो पार्ट निकाल के रखा था. एंड अब वो मुझसे लग नहीं रही. एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू इन द सिचुएशन, बिकॉज ये फिक्स नहीं होगी तो मैं वीडियो कैसे शूट करूँगी. तो मेरे को सबसे पहले ये भी फिक्स करना है. आई होप ये फिक्स हो जाए. फिक्स हो जाएगा तो मैं कैमरे में दिखा दूँगी. Feeling very hungry, so I have skipped the breakfast. So let's cut some fruits because yeah, I have missed fruit so much in hostel. Breakfast time. I'm doing breakfast at 1:30. Sorry, can't help it because घर में हूँ तो of course चलता है सब. I love kiwi. Also excuse my voice. Sorry. आइसक्रीम खा ली सादा. So this is my dinner, chocolate smoothie, and here I was doing some work. And मेरा room अभी बहुत messy है. Sorry, just a sneak peek to my room which is very messy. But yeah, I just made myself this chocolate smoothie. Gonna have it right now and gonna set up my laptop because it's the only thing I'm doing these days. And also I just removed my nail polish. Now I'm going to paint it with new color. I'm very excited to just paint them. सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 1:15 हो रहे हैं. आई कैन शो यू द वॉच. वेट अ सेकेंड. सी इट्स 1:15 राइट नाउ. आई एम वर्किंग, लाइक आई नीड टू वर्क समथिंग. तो आई नीड टू लाइक एक सेकेंड. मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा है और एक हाथ से अपना न्यू लैपटॉप. सो ये मेरे को दोनों हाथ से खोलना पड़ेगा. My mouse is here, my headphones are here, my tumbler is here. Like I'm giving whole workaholic situation. And then there's charger. So my room is a pretty mess. जो मैं 1000 बार बता चुकी हूँ. My room is a pretty mess because I love pretty mess. And ये मैं कल संडे है. So अभी कल ये रूम की दिवाली वाली सफाई होने वाली है. So I'm just gonna wait कि मम्मा की हेल्प करूँ और फिर ये रूम की अच्छे से सफाई हो जाए. लाइक मम्मा ने बोला कि कल ये रूम की सफाई करेंगे दिवाली वाली. तो वो उसका मैं वेट कर रही हूँ. उसके बाद मुझे 2 चीज़ें करनी है रूम में ऐड ऑन. फर्स्टली जो मैं अपने इस कर्टन से लाइक लाइट्स एंड जो मैंने लीव्स लगाए थे वो मैं निकाल के ले गई थी. आई थॉट कि हॉस्टल में कुछ ना कुछ मैं मेकओवर एंड ऑल करूँगी. बट हॉस्टल में मैंने बस वो लीव्स ही यूज़ किए. तो लीव्स मेरे पास ज़्यादा ही थे, एक्स्ट्रा लीव्स पड़े थे तो मैं वो ले आई हूँ. सो आई एम गोइंग टू डेकोरेट दिस कर्टन एज इट वॉज अर्लियर. लाइक पहले जैसा था मुझे उसको वैसा बनाना है. टू गिव सम एस्थेटिक वाइब्स टू माई रूम. एंड मैंने जो वहाँ पे एस्थेटिक बैकग्राउंड बनाया है लाइक पिंटरेस्ट पिक्चर्स के, उसको मुझे अपग्रेड करना है. बिकॉज whenever I come home I'm going to use this as a strong background because it will look so aesthetic. Yeah, it gives a structure to my video. So that's the very important thing I'm going to add on my room. Because I'm just waiting कि एक बार ये रूम की सफाई हो जाए, then I'll take my next step. And what I'm going to do is that I'm going to paste photo paper वाली pictures, like good quality वाली pictures, so that it is more visible, like HD quality की pictures दिखेंगी. Yeah, that's the basic thing. And also I have sorted that ring light वाला situation. And मैं कल ही आई थी and मैं पूरा पैनिक कर रही हूँ, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ये करना है वो करना है. एंड लाइक
सब कुछ फिक्स करना है। तो मेरे को लैपटॉप का करना है, लैपटॉप में मेरे को लाइक एक्सेल सीखना है। यस, मेरे को एक्सेल नहीं आता, सो दैट्स द स्किल आई वांट टू इन्वेस्ट ऑन। मेरे को एडिटिंग आती है, तो मेरे को एडिटिंग अब सॉफ्टवेयर्स में सीखना है। लाइक फ़ोन में तो आती है InShot वगैरह में, बट ऐसे लाइक लैपटॉप में मेरे को सॉफ्टवेयर्स में मेरे को टाइम लगेगा अडेप्ट करने में, तो मुझे वो करनी है। फिर मेरे को कॉलेज की एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ाई करना है, MBA का क्लासेस स्टार्ट करना है मुझे, इंटर्नशिप वगैरह का भी आई नीड टू फिगर आउट, लाइक रिज्यूमिंग वगैरह बनाना है। एंड वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, लाइक लिंक्डइन में लाइक डाल के सब रिज्यूमिंग वगैरह वो सब भी सीखना है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच आई नीड टू फोकस ऑन, एंड देर आर सो मेनी पर्सपेक्टिव्स which needs my attention, but the thing is I'm in the center of all this. Everything is surrounded me like this like सब मेरा गला पकड़ के खड़े मेरे सिर ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि भूमिका ये कर लो, भूमिका वो कर लो, भूमिका वो कर लो। मैं एकदम से ना एकदम आई हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं क्या करूँ। पहले मैं लैपटॉप सीखूँ, लाइक लैपटॉप आती है चलानी, बट लाइक लैपटॉप सेटअप करूँ, या फिर अपना एडिटिंग का सब सेटअप करूँ इसमें, या एक्सेल सीखूँ, या फिर लाइक मैं अपना कॉलेज का पढ़ाई करूँ, या फिर मैं घर में लाइक फैमिली के साथ एंजॉय करूँ, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज फिर हॉस्टल जाके तो यू विल मिस दिस। सो मैं ये लाइफ इन्जॉय करूँ, कहीं बाहर घूमने जाऊँ, लाइक अपनी एक्टिवा लेके गेड़ियाँ मारने जाऊँ, जो मैं हमेशा करती थी पहले जब मैं इधर रहती थी। लाइक गेड़ियाँ तो नहीं मारती थी, बट कुछ ना कुछ काम से जाती थी तो घूमना हो जाता था। बट अभी मेरे को ऐसा कुछ एज सच कुछ काम नहीं है, तो मुझे गाड़ी चलाने का मन है, बिकॉज आई एम वेरी सिक्योर कि कहीं मेरी एक्टिवा चलाने की प्रैक्टिस छूट गई और मैं कहीं भूल गई, बिकॉज दैट्स द वन स्किल आई एम वेरी प्राउड ऑफ। बिकॉज मैं एक दिन में एक्टिवा चलाना सीख गई थी। आई रिमेंबर कि मैं 10th में थी, एंड मैंने साइकिल चलाती थी 10th क्लास तक, एंड क्लास 10 तक मैं साइकिल में ही कोचिंग जाती थी। एंड उसके बाद मैं साइकिल से डायरेक्ट पापा ने मुझे एक्टिवा चलानी सिखाई। सपोज़ मैं आज स्कूटी चलाने जा रही हूँ, लाइक सीखने गई हूँ, तो कल तक मैं साइकिल चलाती थी, ऐसा सिचुएशन है। एंड पहले क्या हुआ पता है, पापा मेरे को पीछे बैठे, पापा और मैं आगे बैठी, और मेरे को वो सिखा रहे थे। बट फर्स्ट टाइम सीख रही हूँ, तो मेरा वेट, पापा का वेट तो मेरे को बहुत टर्निंग वगैरह में मेरे को नहीं हो रहा था, तो 2 जन बैठे थे ना, तो उतना वेट मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी जब टर्निंग का टाइम आ रहा था। तो फिर पापा ने क्या किया, मुझे बोला कि पूरा अकेला छोड़ दिया। लाइक वो एक ऐसी फील्ड जैसा था जहाँ पे एकदम वैकेंट सी एरिया थी। पापा ने मेरे को बोला कि तू चला अकेले, और मैंने पहली बार में एक बार में मैं सीख गई। पापा ने मुझे थोड़े बहुत डायरेक्शंस दिए, ब्रेक मारना है, ये वो करना है, धीरे से टर्निंग लेना है, एंड मैं वो सीख गई एक बार में, खुद से अकेले चलाया मैंने पहली बार में। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट स्किल आई हैव, और मैं अब उसको लाइक भूलना नहीं चाहती। तो मैं रोज़ गाड़ी चलाऊँगी, कहीं ना कहीं जाऊँगी, लाइक प्रैक्टिस हो जाए, बस मेरा प्रैक्टिस रहे। ये 15 दिन भी बहुत है प्रैक्टिस के लिए। फिर तो मैं समर वैकेशन में आऊँगी, शायद से 3 महीने की समर वैकेशन होती है, तो मे बी मैं तब आऊँ। एंड आई नीड टू फिगर इट आउट। MBA का तो लाइक कैट एग्ज़ाम मैं दूँगी 3rd ईयर में, तो उसके पहले तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। तो मेरे को अब इंटर्नशिप का देखना है, कंटेंट क्रिएशन में कर रही हूँ, कॉलेज भी मैनेज में कर रही हूँ, हॉस्टल में रह के सब मैनेज कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ें तो हैं ही। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी दे दूँ। रात के 1:30 बज रहे हैं, एंड नाउ आई एम गोइंग टू वर्क अ लिटिल बिट, वर्क ऑन माई बेसिक सेटअप। नहीं, सेटअप तो हो गया, बट आई नीड टू जस्ट सी चेक माई एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड देन गोइंग टू डू थोड़ा बहुत टाइम पास, बिकॉज या आई एम लविंग दिस बेड, आई लव दिस। लाइक मेरे को ये किंग साइज़ की बेड में सोने की आदत, और कहाँ मैं वो कॉलेज में सोफ़े से भी पतली बेड पे सोती हूँ मैं। लाइक या आई एम डूइंग सो मच स्ट्रगल यू गाइस। लाइफ इज़ सो डिफरेंट। वहाँ पे तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं होता, तो तुम्हारी कॉलेज मिस होने के चांसेस होते हैं। बट हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट डे हो तो मैं उठ जाती हूँ। कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह में मेरे को CC आवर्स कंप्लीट करने हो तो मेरे को जाना पड़ता है, वो मैं मैनेज कर लेती हूँ। बट अगर रैंडम डेज़ में मेरे को जाना है और मैं लेट से सोई, तो ऐसा नहीं कि कोई उठाने वाला है सर पे कि उठ जाओ कॉलेज, वो चीज़ का मिस होता है, ठीक है। बट एक चीज़ ये भी है दैट देयर इज़ नो वन टू, लाइक जो भी बोलो मम्मा पापा, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि उनका टोकना या उनका हमें कुछ बोलना इट्स रॉन्ग, बट द थिंग इज़ देयर आई डू एवरीथिंग ऑन माई ओन टाइमिंग। सपोज़ मैं वहाँ पे 3-4 बजे नहाने जाती हूँ, ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू जज मी ऑन दिस बेसिस, जज मी बिकॉज आई डोंट केयर, बिकॉज या दैट्स मी, दैट्स हाउ आई लिव, that's my habit. Like I'm trying, I know that's not a good habit to take a bath around 3 or 4, and ये मेरा डेली नहीं होता। और मेरा 7 बजे में कॉलेज होता है, तो मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। मैं सुबह 6 बजे उठ के हेयर वॉश कभी नहीं कर सकती, ये मैंने ज़िंदगी में नहीं किया और मैं करने भी नहीं वाली, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी हो। तो जिस दिन कॉलेज होता है मैं 7 बजे जाती हूँ, कभी 11 बजे ख़त्म होता है, और अगर इवेंट्स हो तो मैं आती हूँ 2, ढाई, 3 बजे, फिर खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करके फिर 3-4 बजे मैं नहाने जाती हूँ। ऐसा हो जाता है कभी कभार, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हो ही जाता है बिकॉज कॉलेज की वजह से। एंड बट यहाँ पे रहती हूँ तो मम्मा भी लाइक टाइम से नहाने जाओ एंड ऑल वो एकदम, अगर मैं
नहीं जाऊँ टाइम से नहाने, तो फिर 10 बार मुझे उस चीज़ पे मम्मी बोल देती, तो मेरे को इवेंचुअली उठ के जाना ही पड़ता है। ठीक है ना, लाइक वो ऐसे बोल देती हैं तो मैं एटलीस्ट टाइम पे वो चीज़ कर लेती हूँ। बट वहाँ पे वो चीज़ की मेरे को सिर्फ कभी कभी लगता है कि हाँ एडवांटेज भी है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी की करूँगी। एंड आई लव डूइंग थिंग्स जिसमें सिर्फ मैं अपनी मर्ज़ी की करती हूँ, सिर्फ अपनी सुनती हूँ। आई एम माई ओन बॉस, सो आई गिव माई सेल्फ इंस्ट्रक्शंस। और मुझे अपने इंस्ट्रक्शंस पे चलना ज़्यादा पसंद है रैदर दैन किसी और के इंस्ट्रक्शन में। सो या ऑफकोर्स यहाँ पे भी मतलब मम्मी बोलती तो तुरंत तो मैं नहीं जाती, बिकॉज मेरे को है कि आपने बोला तो मैं तुरंत तो नहीं जाऊँगी। एक ये तो थोड़ी बहुत से मस्ती तो सभी करते थे पेरेंट्स के साथ। सो या ऐसे छोटी बड़ी नोक झोंक होती रहती है हमारी। My mama makes the most delicious food in this entire universe, and I know my friends can relate to this because they have only said to me so many times that my mom cooks really tasty and yummy foods. Like I am big fan of her cake she makes. घर पे मैं रात को आके मैंने डब्बे खोल के पहले केक ही खाई, इवन तो मैंने नहीं बोला था उनको कि मेरे लिए केक बना कर रखा, बट शी मेड इट फॉर मी जस्ट बिकॉज आई वाज कमिंग होम। सो दैट्स सो क्यूट ऑफ हर। तो मैंने रात के 3 बजे आके मैं सबसे पहले उनके हाथ का केक खाई अपने घर आने की खुशी में। So yeah, there are so many things you are going to miss about home. Nothing is going to be as same as you lived as a child. You know, जब तुम घर में रहते हो ना तो तुम मेन कैरेक्टर होते हो, बिकॉज द लाइफ इज़ ऑल अबाउट यू। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, सब कुछ तुम्हारे पे टेंशन होता है। एंड जस्ट बिकॉज तुम टीनेजर हो तुम पे ज़्यादा फोकस है, बिकॉज यू आर द नेक्स्ट जनरेशन। सो घर पे ये हो जाता है कि आपको मेन कैरेक्टर एनर्जी मिल जाती है, बट जब तुम बाहर जाते हो यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर एनर्जी। तुम देखोगे तुमसे 1000 लोग तुमसे ज़्यादा आगे होंगे, तुमसे ज़्यादा करियर में आगे कुछ कर रहे होंगे, एंड दे विल एडवाइस यू, दे विल टॉक अबाउट इट, दे विल शेयर विथ यू कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंड यू विल बी लाइक ओ माय गॉड वेयर आई एम स्टैंडिंग इवन। लाइक मैं तो इनकी बराबरी का भी कुछ वर्क नहीं करती वहाँ के। लाइक मुंबई जाके आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स जो मैं यहाँ रह के नहीं सीख सकती थी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट डिसीजन दैट आई टुक कि मुझे बाहर निकलना, आई नीड टू मूव आउट। एंड आई थिंक मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी टू teach me all those lessons which would have been deleted अगर मैं वहाँ जाती ही नहीं तो। सो मूविंग आउट इज़ सो नेसेसरी। ज़िंदगी में एक बार मूव आउट करो, बिकॉज क्या हो जाता है ना, हम फैमिली में रहते तो ये होता है कि हाँ हमारी फैमिली का जो परंपरा एंड जो लाइफस्टाइल जो पहले से हम जीते आ रहे हैं, जो चीज़ें होती है, जो बातें होती है, वो जो पहले से चलती आ रही है, उसी लूप में, उसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। लेकिन हम जब रेशनली बाहर जाके रेशनली में देखते हैं ना लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, और जहाँ मेन कैरेक्टर नहीं होते, तो हम जब रेशनल चीज़ में देखते हैं ना कि हाउ पीपल आर लिविंग एंड हाउ दे टॉक, हाउ दे डू थिंग्स, हाउ देयर डेली लाइफ लुक्स लाइक, देयर लाइफ स्टाइल, देयर एवरीथिंग, तो तुम्हारे लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तुम जिस नज़रिए से चीज़ों को देखते हो वो भी चेंज हो जाता है, बिकॉज सबके घर में नहीं होता भाई। एवरी फैमिली डज नॉट हैव अ गुड एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड। तुम फैमिली से बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हो, उसके लिए मैं वो नहीं बोल रही, बट द थिंग इज़ निकलो बाहर, घर से बाहर निकलो, ट्रैवल करो, समझ में आएगा दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर तुम अभी रह गए ना घर में तो ज़िंदगी भर फिर घर की ही चीज़ों में रह जाओगे, और बाहर की दुनिया तुम में एडजस्ट नहीं कर पाओगे कभी, एंड वो फिर तुम्हें दबा देगी, तुम्हारे कैरेक्टर को दबा देगी। बिकॉज फॉर जॉब्स एंड ऑल तुमको बाहर निकलना है, हंटिंग करना है, तो अभी से निकल लो ना, कॉलेज के से ही निकल लो। एंड लकी तो वो होते हैं जिनको फॉरेन जाना मिलता है, उनका तो एक्सपीरियंस लेवल हम मैच नहीं कर सकते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हम मैच नहीं कर सकते वी इंडियंस का। बट ओके, ये घर से इतना दूर जाना भी इट्स अचीवमेंट इन इट्स ओन विच आई हैव गिवन टू माई सेल्फ, which I have gifted myself, and I'm very proud of myself because I was a kid जो जिससे मम्मी से 2 मिनट भी दूर नहीं रहा जाता था। I swear on this। मम्मी अगर कहीं भी कुछ बाहर कुछ भी काम से जाती है, सामान वामान लेने या कहीं भी बाहर गई हुई होती है, I can't। एंड रात के 1:30 बजे मैं इतनी मिजरेबल लग रही हूँ, तुम क्या एक्सपेक्ट करो, मेकअप वेकअप करके वीडियो बनाऊंगी? नो, आई एम नॉट दैट गर्ल कि नहीं, मैं अनफिल्टर्ड रहना चाहती हूँ यूट्यूब में। यूट्यूब इज़ माई कम्फर्ट जोन। मम्मी जब भी बाहर जाती थी मैं पूरी रेस्टलेस हो जाती थी यार। लाइक मम्मी के बिना मेरा 2 मिनट नहीं निकाल सकती थी। मतलब 24 घंटे दूर जितना डिस्टेंस है हमारे में, उतना डिस्टेंस हज़ारों किलोमीटर दूर रह रही हूँ आज मैं उनसे, रहती हूँ। और अभी तो मैं घर आ रखी हूँ, बट हाँ हज़ारों किलोमीटर दूर रहती हूँ मैं उनसे, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग लाइफ एनी वे। एंड द थिंग इज़ तुम्हें बस इतना काम होगा ना तो तुम उस चीज़ पर उतना फोकस नहीं कर पाओगे। दैट्स द ट्रिक आई थिंक। इसको बचा के रखते हैं, इमोशनल वाले वीडियो में बताएंगे, इसको अभी नहीं बता सकती, सॉरी। अपने लाइफ के अचीवमेंट्स में इसको काउंट करना चाहूँगी कि दैट आई मूव आउट एंड आई हैव द जिगरा टू डू एवरीथिंग अलोन, टू मैनेज एवरीथिंग अलोन, बिकॉज ट्रस्ट मी, आई वॉज अ किड हु बिलीव्ड कि मैं करियर के लिए अपने पेरेंट्स का घर नहीं छोड़ूंगी। आई बिलीव इन दैट थ्योरी।
दैट आई एम नॉट गोइंग टू लीव माई पेरेंट्स होम बिकॉज आई कांट लीव विदाउट देम। मैं डिप्रेशन में चली जाती एंड ऑल, लाइक मैं बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट आई मेड माई सेल्फ एंड दैट्स द थिंग वेर एवरीथिंग चेंज। देखो इतनी सी बातों में आंसू आ जाते हैं भाई, मैं बहुत इमोशनल हूँ लाइक, एंड आई रियली मिस माई दादू दादी एंड नानू। I really do miss three persons very much. Like I have a thing, मैं सोने से पहले like सो के उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपने नानू, फिर दादू, फिर दादी, इन तीनों का नाम पहले लेती हूँ। लाइक उन्हें जय श्री कृष्णा बोलती हूँ पहले मन में सुबह उठ के, एंड देन फिर भगवान जी का नाम लेती हूँ बिकॉज आई लव देम द मोस्ट। सो वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, एंड ये मैं बहुत दिनों से स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ, जब से मैंने उन्हें खोया है तब से। सो या दैट्स द थिंग आई वांटेड टू शेयर, जस्ट मन में आ गया था, मैंने आई टोल्ड यू या। एंड बेसिकली मैंने 1:15 से 1:45 कर दिया शूट करते करते। शिट, मैं कितना बोलती हूँ यार। सो या लाइफ इज नॉट लाइफ। पार्ट करेंगे भाग। ये झाड़ू वाला आया, घर से कचरा निकाल। झाड़ू वाला आया, झाड़ू वाला आया, घर से कचरा निकाल। झाड़ू वाला आया, घर से कचरा निकाल।